Okay, so a quick question for all of you. Say yes in the comments if this has happened to you. Okay, that you have sat down to study a book for 5 hours. Diligently, आज तो मैं खत्म कर ही दूंगी या दूंगा. जैसे विवेक सिंह है, let's say विवेक सिंह पढ़ रहे हो या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है. But instead ended up scrolling reels for 5 hours. Hmm? So why did you do that? I mean, why did you do that? Answer. क्या लगता है? आपने ये इसलिए किया क्योंकि आप लेजी हो या फिर बस ये डेस्टिनी थी आपकी या साइकोलॉजी. So, welcome back, future officers. Today we are decoding a super important topic for GS paper 4 and psychology optional. I'm going to teach you 5 key perspectives of human behavior with some really fun examples, okay? And stick around till end because I'll have to give you the exact 250-word model answer at the end of this. You'll get a. I did not give the model answer in the last video, but today we are gonna get the model answer. I'm gonna give it to you and you can screenshot it. Okay? So let's begin without wasting our time. So we have to explain 5 most important perspectives of human behavior. Okay, we're going to read about human behavior. So basically, human behavior can be seen through the lens of 5 different perspectives: biological perspective, psychodynamic perspective, behavioral perspective, cognitive perspective, and humanistic perspective. Okay, so first of all, biological perspective. I'm gonna go for that. Thinkers like Charles Darwin, sorry, Charles Darwin and Rogers Perry, ठीक है, Rogers Perry treat humans. They said कि भाई जो human beings हैं, they are like biological machines, ठीक है. Let's take an example of you falling asleep while studying. Darwin would say, "Bhai, it's not your fault. Your brain burns a lot of calories. When it gets tired, you are sitting here and you got tired. You got tired." So Darwin will say कि भाई your brain works a lot. ठीक है, it's not your fault. It's your brain that works a lot and बहुत ज्यादा calories burn करता है. It burns a lot of calories and when it gets tired, your neurochemistry forces you to shut down to save energy. Shut down and therefore थके थके से लग रहे हो. ठीक है. From this lens, your behavior is driven purely by genetics and evolutionary survival and not laziness. So basically, you are just a biological machine. ठीक है? क्योंकि you have been doing some work, your calories get consumed. तुम्हारा दिमाग और ज्यादा जो तुम्हारे दिमाग की न्यूरोकेमिस्ट्री है वो तुमसे बोलती है कि भाई शट डाउन कर जाओ. शट डाउन करते हो उसको आप लेजीनेस नहीं बोलोगे. दैट्स योर जस्ट ब्रेन फॉग. ओके. सेकंड वन इज psychodynamic perspective. ठीक है. In psychodynamic perspective, it was mainly championed by Sigmund Freud, here he goes, and Carl Jung. ठीक है. ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ड्रिवन बाय आवर अनकॉन्शियस माइंड्स. ये लो.
वी आर ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस माइंड विच इज द हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग। अरे वो फोटो देखी होगी ना जिसमें ये पानी होता है, ये आइसबर्ग है, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, दिस इज द एंटायर आइसबर्ग। हमने जब फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ते हैं तो हम इड ईगो सुपर ईगो भी पढ़ते हैं ना, हम ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइंड भी पढ़ते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें। सो इट्स बेसिकली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स है दे आर ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस माइंड विच इज द हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है। एंड दीज आर द रिप्रेस्ड डिजायर्स। ठीक है। इमेजिन एन एस्पिरेंट हु hasn't eaten outside in let's say 2 years। ठीक है। अंदर ही अंदर शादी में पनीर खाने की इच्छा दबा के और बैठा है अपने भाई की शादी की। ठीक है। तो फ्रॉइड सेज दैट दिस डिजायर सिट्स इन योर अनकॉन्शियस माइंड। इट विल सिट इन अ डिजायर will sit in your unconscious mind। ठीक है। और इतना ज्यादा it will, it will be repressed, it will be repressed, it will be repressed, and one day it will erupt। ठीक है। It will erupt suddenly, you order two pizzas and binge watch Netflix for 48 hours। Freud says that your hidden conflicts control your behavior। ठीक है। It controls your behavior। Now we'll go to different perspective, that is behavioral perspective। इसमें behavioral perspective में psychologists like Watson, I think this is not working properly, okay, psychologists like Watson, ठीक है, Pavlov and Skinner ने कहा कि ये हिडन थॉट विडन थॉट कुछ नहीं होता है। हिडन थॉट के आइडिया को बोला नो, नॉट ट्रू। They said all behavior is learned through all behavior. The entire behavior thingy is learned through what? Rewards and punishments। Rewards and punishments। ठीक है। इंडियन से बेहतर भाई कौन समझ ही सकता है इस चीज को। ठीक है। थिंक ऑफ द इंडियन मॉम्स लेजेंडरी फ्लाइंग चप्पल। ठीक है। फ्लाइंग चप्पल सबने देखी है, ऐसी होती है ना चप्पल। हाँ, अरे क्या चप्पल बनाई है मैंने। ठीक है। स्किनर कॉल्स दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो स्किनर भाई साहब है, इस चीज को, जो रिवॉर्ड कंडीशनिंग वाली जो चीज है, इसे ये कहते हैं ऑपरेंट conditioning। We'll read all these concepts in the coming questions, conditioning, but for today this much is enough। So when you misbehaved as a kid, mom just raised the chappal, which is punishment। So flying chappal is a punishment। किसी के लिए रिवॉर्ड तो नहीं था ना भाई, नहीं तो मैं बहुत ही गलत क्राउड से डील कर रही हूँ। ठीक है। सो फ्लाइंग चप्पल वॉज अ पनिशमेंट टू यू एंड योर बिहेवियर बिकेम 100% डिसिप्लिन इंस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मम्मी मुझे किसी मेहमान के यहाँ लेकर गई, तो वहां में बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स रखे हुए थे। तो ऐसे होता है ना कि मेहमान के घर के जो बिस्किट होते हैं वो बस देखने के होते हैं और खाने के नहीं होते हैं। जब मेहमान ने बोला खा लो, तो वहां पे कुछ 5-6 बिस्किट रखे होंगे, और मैंने एक उठाया, दो उठाया, और हाथ छोटे छोटे से थे, तो दो में एक हाथ भर गया, दो में दूसरे हाथ भर गया। तो जो बचे हुए 2 बिस्किट है उनका क्या किया जाए, तो मैंने दे मारा मुंह प्लेट में। और फिर मेरी मम्मी ने दिखाई थी वो आंख, और तब से मुझे याद है कि भाई साहब नहीं। सो दिस स्टोरी इज लाइक दिस एक्ट्स एज अ पनिशमेंट और अ कंडीशनिंग टू यू। ठीक है। सो योर बिहेवियर बिकम्स 100% डिसिप्लिन इंस्टेंटली। भाई उसके बाद मैंने नहीं खाया, मैं बिस्किट खाना बंद कर चुकी थी उसके बाद से। सो दे सेड दैट योर एनवायरमेंट शेप्स यू। एनवायरमेंट शेप्स यू, करेक्ट। ठीक है। चौथा आया चौथा आया कॉग्निटिव, है ना। हाँ, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में ओके या सो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में जो थे, सबसे ज्यादा जो फेमस भाई साहब हुए वो हुए प्याजे जी, शॉ प्याजे। आई टोल्ड यू, शॉ पढ़ते हैं ना, जीन नहीं पढ़ते। शॉ प्याजे। कॉग्निटिव या फिर कॉग्निशन जो होता है ना, कॉग्निशन, द वर्ड कॉग्निशन एक्चुअल में मीन्स थिंकिंग। ठीक है। आई होप यू नो दिस।
It's about your sorry. It's about how your brain interprets interprets what? An event. ठीक है? It's basically how your brain interprets an event. ठीक है? Let's say friends. There are two friends, friend A and friend B. दोनों के रिजल्ट आए यूपीएससी फेल्ड। बी ने बोला हो गया, मैं चला पकौड़े तलने, तू पढ़ भाई पकौड़े तलने। ठीक है, ठीक है। एंड जो ए था वो कहता है नहीं भाई, मेरा आई हैव टू सी कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, वेयर मिस्टेक्स माय फ्लॉज, है ना? क्या लेट मी फिक्स माय स्ट्रेटजी, लेट मी फिक्स माय स्ट्रेटजी, है ना? ही इज सिटिंग इन लाइब्रेरी फॉर 8.5 hours एवरी डे, इवन फ्रॉम जुलाई itself। ठीक है, तो सेम सेम प्रोसेस है, मतलब सेम इवेंट हुआ है मगर इंटरप्रिटेशन दोनों ने अलग अलग किया है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पांचवा और फाइनल पर्सपेक्टिव है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब इंसान तो इन्होंने एकदम ऐसे बना दी कि अरे भाई भगवान ही है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हुआ क्या, मोस्टली कार्ल रॉजर्स एंड मास्लो का काम है। मास्लो की तो हायरार्की अपन ने पढ़ रखी है ना, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। दिस इज अ होमवर्क ऑल्सो, गो एंड रीड मास्लो's hierarchy, दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस, ओके? रीड ऑन योर ओन एंड आई विल गिव यू द होमवर्क फॉर आगे के लिए भी। सो या, फाइनली द नंबर 5 इज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, बाय अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रॉजर्स। दे बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स जो है, दे हैव फ्री विल, they are not influenced by what? हाँ, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय भाई किस तरह का कॉग्निशन थिंकिंग चल रही है, मतलब ये चीजें, या फिर कंडीशनिंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसी है, क्या सप्रेस करके रखा हुआ है, क्या बायोलॉजिकल में, कुछ नहीं, कुछ ये सब नहीं, ये सब ये बोले ये सारी बकवास चीजें हैं। जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर ड्रिवन बाय फ्री विल। ठीक है, एंड दे एक्ट इन अ फ्री विल टू रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। ठीक है, टू रीच देयर highest potential, and Maslow called that highest potential as self-actualization। अगर आपने पढ़ा तो आपने ये डायग्राम ऐसे देखा होगा, पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है ना? you'll have to read it, I'm not gonna tell it that। so for this, इसका एग्जांपल ये समझ के रखो, जैसे हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, लेट्स से। ठीक है, उनको और कोई एग्जांपल नहीं आती याद है, सो हाँ, इट्स देयर इज डॉक्टर एपीजे कलाम। ठीक है, इट्स अ जेम ऑफ अ पर्सन। But yeah, think of Dr. APJ Kalam. He did not work tirelessly to avoid punishment. Maslow would say he was driven by the conscious। मास्लो बोलेगा कि भाई वो पनिशमेंट के डर से तो सारे काम नहीं कर रहे थे जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी चीजें उन्होंने, उनको पनिशमेंट का तो कोई डर था ही नहीं। उन्होंने क्यों किया? मास्लो विल से दैट ही वाज ड्रिवन बाय कॉन्शियस। ठीक है, हायर पर्पस ऑफ लाइफ, हायर पर्पस ऑफ लाइफ विच इज हायर पर्पस टू अचीव अल्टीमेट अल्टीमेट पोटेंशियल। ठीक है, सो आई मीन आई हैव क्लियर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स बेसिकली, but clearing the concepts and just knowing about the thinkers won't fetch you the marks. So I'm going to show you the model answer as well, and I would want you to just screenshot that so that you can, read it later on and just write it whenever wherever you want to, and I have highlighted the important things. So just go through it, okay? I'm just showing it to you. I'll read with you. So let's say human behavior is the complex interplay of physiological mechanism, mental processes, and environmental stimuli.
अंडरस्टैंडिंग इट रिक्वायर्स अ मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, ठीक है, मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 5 फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल मशीन बोल दिया था ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे, किसने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉजर्स पेरी ने। So what have I written there? Rooted in the evolutionary theories of Charles Darwin and later the neurobiological studies of Roger Sperry, this perspective views human behavior as a direct consequence of physical processes. It argues that human actions are heavily influenced by genetics, brain anatomy, and neurochemical balances that have evolved to ensure survival. दूसरा हमने पढ़ा सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जंग का, क्या था? हाँ, pioneered by Sigmund Freud and Carl Jung. This approach postulates that human behavior is primarily driven by unconscious and repressed desires, ठीक है, unconscious forces। किस किस पे इसने इम्पैक्ट, मतलब किस चीज पे एम्फोसाइज किया है? repressed desire पे, internal psychological conflicts and unresolved childhood experiences। जब थोड़ा सा फ्रॉइड के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि he has given a very different perspective to psychology. I mean, if you are interested, you can go through it. If you have time, then only go through it, please. थर्ड पर्सपेक्टिव वाज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। हम देख चुके हैं पावलोव, वॉटसन, स्किनर, इनकी थ्योरी थी रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली, इफ यू रिमेम्बर। फ्लाइंग चप्पल, है ना, मम्मी की चप्पल याद आ गई, बिस्किट याद आ गए। हाँ, सो क्या बोला है इसने? दे आर्ग्यू दैट ऑल ह्यूमन बीइंग बिहेवियर इज ऑब्जेक्टिवली लर्न थ्रू एनवायरनमेंट, कि हम जो भी सीख रहे हैं एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, कंडीशनिंग से सीख रहे हैं, ठीक है। शेप्स कंटिन्यूसली बाय द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है? Viewing human mind as complex information processor, psychologists जैसे Shaw Piaget and Aaron Beck assert that behavior is dictated by internal mental frameworks. This perspective focuses on how individuals perceive, remember, reason, and interpret the world around them to solve the problem. Humanistic perspective, Maslow और Carl Rogers, है ना, ये हुई की बात। दिस पर्सपेक्टिव क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और क्या हुआ है यहाँ पे? क्या एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट बताइए मैंने? होमवर्क। मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड पढ़ के आनी है, ठीक है। और कमेंट में लिखना है क्या पढ़ा है तुमने। दिस पर्सपेक्टिव एक्टिवली रिजेक्ट्स मैकेनिकल एंड डिटर्मिनिस्टिक व्यूज ऑफ ह्यूमन, इंस्टेड इट एम्फसाइजेस ऑन फ्री विल, कि हम ह्यूमन बीइंग्स है। एक तो इसमें एक और चीज डाल सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, दे आर ड्रिवन बाय फ्री विल एंड इट हैज आल्सो गिवन ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ठीक है। दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। if you want, you can add this extra point as well, ठीक है। This gives very, हाँ, instead it emphasizes on free will, inherent human goodness, ठीक है, वही optimistic view है, human goodness and innate conscious drive toward reaching one's full potential, often termed as self actualization। फुल पोटेंशियल पॉलिटी में किस चीज में है? डीपीएसपी में है और या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में है? जरा ये भी बताना और ये भी जरा रिसर्च करना, और भले ही मुझे मत बताना, पर खुद के लिए पढ़ लेना। इट विल बी हेल्पफुल टू यू। Then we will write the conclusion that no single perspective, we have to be balanced. तो हम लोग लिखेंगे that no single perspective entirely explains the complexities of human actions. We are going to be civil servants. So for civil servants, synthesizing these into a holistic psychosocial approach is essential. This integrated understanding aids in empathetic governance, nuanced policy formation, and effectively nudging the positive behavioral changes in the society. I don't think कि सिर्फ civil servants के काम आता है। अगर आप psychology का subject पढ़ रहे हो, तो it's gonna help you all together in overall development of your self, I'll say. And you'll understand other human beings even better. You'll be more empathetic. You'll understand why someone is behaving the way they are. And you'll understand. You'll be someone who will be kind. Correct? So, this is it. This is what I was supposed to teach you today. So, if this breakdown helped you, then show some love and give me suggestions. If there is something, if there is improvement, there is always scope of improvement. If you want me to improve, if you want me to change something in studies or the way I teach, or you want more examples, then you can let me know. And yeah, so Jai Hind. I'll see you in next session. Keep studying, keep revising. God bless you all.